Hello everyone, good morning. Welcome you back in the topic comparing quantities. Yesterday, as we all have discussed the questions, I'm very happy to see your completed exercise from almost each and every one. Okay, there are few students those who are still not sending, not particular, but it's okay. After some time, they will also surely come back to the track. Let's go ahead. Let's move ahead. Today's target is to understand the new concept based on the percentage. The concept is about discount and profit and loss. Basically, let me tell you, there is no difference between what we have done in the last class and this one. In both the cases, basically, you are going to find out the percentage. You are going to only find out the percentage. That's it. There is nothing, no difference. That's what I said. If you understand the last class or till last class everything properly, if you are able to use your knowledge, use your logic or there in first two classes, then after this things are not at all going to be difficult. These are going to be very very simple for you. Only thing is that the base concept you need to understand. What do you mean by discount? व्हाट इवन बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखो, एक सिंपल वे से मैं आपको ये समझा देता हूँ. व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, दुकान में हम जब जाते हैं एंड जाते ही आपको आपको एक ऐसे सेल दिखता है. सेल सेल सेल, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट. देर कैन बी पॉसिबिलिटी, राइट? When these sales are there, we become so happy, so eager to go and purchase it because things have been reduced. The amount, the cost is been reduced to that much percent. That is what we call as a discount. That means discount reduces the value. Discount reduces the value, the selling price, right? तो डिस्काउंट किस पे होता है? कोई भी एक आर्टिकल है, एनी आर्टिकल इज दिस, इसके ऊपर एक प्राइस होता है लाइक 125, राइट? दिस आर्टिकल, उसके ऊपर एक प्राइस लिखा होता है 125 एंड नीचे लिखा होता है डिस्काउंट. ऑल दिस आर्टिकल इज ऑफ 10% डिस्काउंट. तो ये जो मनी है 125 व्हाट इज रिटन देयर, उस पर 10% डिस्काउंट लगा के यू हैव टू पे द अमाउंट. हाँ, वो सब कुछ हम देख लेंगे, डोंट वरी. उस पर 10% डिस्काउंट लगा के यू हैव टू पे द अमाउंट. तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर दैट कि जो अमाउंट व्हाट यू आर गोइंग टू पे, इट इज सपोज टू बी लेस दैन दिस नंबर. Yes, exactly. So 10% discount, when it is been put, that 10% discount is been put on the market price or marked price. This price is called as a marked price. Marked price. And which we call as in short MP. Okay, marked price MP. On what amount it is sold is called as a selling price or sale price. Selling price. And we in short called as a SP. That's it. Clear? Got it. So it's a very very simple concept one can understand. If I subtract marked price and selling price, I will get the amount discount. The discount can be found in two ways. One, in form of percentage, and second, in form of value, in form of amount. So if I subtract marked price minus selling price, I'm going to get discount. And it is very logical, है ना? जितना अमाउंट मुझे कम हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्काउंट. जो अमाउंट कम हुआ, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज ए डिस्काउंट. तो कितना कम हुआ, दैट वी कैन इजीली सब्ट्रैक्ट मार्क प्राइस, जो भी वैल्यू उस पर लिखी हुई है, एंड जो हमने पे की है. तो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज डिस्काउंट. तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट इज नथिंग बट अ परसेंट or out of 100 how much amount is been reduced, right? So that is a percentage, as we have already discussed in the first class. Percent it is. Okay, per मतलब per oblique, okay, और divided by. परसेंट मतलब सेंचुरी. सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100. सेंट, सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100. वी हैव डिस्कस दैट, वी नो दैट सेंट क्या होता है. ठीक है ना? तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया कि परसेंट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100. तो वो आउट ऑफ 100 कितना परसेंट है? दैट इज नथिंग बट डिस्काउंट परसेंटेज. ठीक है? तो डिस्काउंट या फिर जो भी हम लोग फाइंड करते हैं वो दो फॉर्म में होता है. एक होता है परसेंटेज फॉर्म, एक होता है वैल्यू फॉर्म.
तो जो भी चाहिए वो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से दे सकते हैं। ओके, तो आपको ये सोचना नहीं है बिल्कुल भी, ये दिमाग में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि डिस्काउंट कैसे निकालेंगे एंड डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये क्या होता है, परसेंट कैसे होता है। ऑल दैट यू डोंट हैव टू कीप इन माइंड। आपको बस ये याद रखना है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं एंड परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। ओके, किसका परसेंटेज निकालना है वो देखना है एंड देन दैट्स इट। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं मार्क्ड प्राइस टू सेलिंग प्राइस पे, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। देखो प्रॉफिट पहले देखते हैं। अगर मैंने परचेस किया एक पर्टिकुलर चीज़, हमने अगर परचेस की, इमेजिन करो कि मैंने एक पेन परचेस किया 20 रुपीज़ का और उसको मैंने सेल कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ CP। ये जो 20 होता है इसको बोलते हैं CP। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है CP का मतलब? कॉस्ट प्राइस, जितने में मैंने परचेस किया और उसको इमेजिन करो मैंने 25 रुपीज़ में बेच दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ सेलिंग प्राइस। जैसे यहाँ पर भी होता है सेलिंग प्राइस, ये भी वही है सेलिंग प्राइस। लेकिन डोंट यू थिंक इन द डिस्काउंट सेलिंग प्राइस गेट रिड्यूस्ड, बराबर। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट अगर है तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो रहा है। जो इंक्रीज्ड अमाउंट है वो है प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? ₹5। ठीक है, तो जैसे डिस्काउंट वैल्यू में भी होता है एंड परसेंट में भी होता है, वैसे ही प्रॉफिट भी कैसे होता है? वैल्यू में भी होता है, परसेंट में भी होता है। ओके, तो हम लोग वो परसेंटेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो बेसिकली इट्स नॉट डिफरेंट दैन द डिस्काउंट एंड प्रॉफिट लॉस सेम ही है, एक ही चीज़ है, बस कुछ अमाउंट ऐड हो जाती है, कुछ अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बस उतना ही डिफरेंस है। लॉस क्या होता है? लॉस क्या होता है? अगर मैंने वो पेन लिया 20 रुपीज़ में एंड इफ आई सेल इट फॉर 18 रुपीज़, तो इजंट इट आई एम एट लॉस, मुझे 2 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो वो होता है लॉस। ये तो बहुत कॉमन सेंस है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसको परसेंटेज में कैसे समझना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं और तीनों में मैंने क्या किया हुआ है, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ही अलग अलग एक साथ क्वेश्चन लिए हुए हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही है। तो वो कैसे सेम है वो दिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक कंपैरेटिव स्टडी किया हुआ है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो देखते क्या है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड विथ 250। देखो डिस्काउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्क्ड प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इंपॉर्टेंट चीज होती है CP। जो भी आप लोग परसेंटेज निकालते हो वो मार्क्ड प्राइस पे ही निकालना होता है। जो भी आप प्रॉफिट निकालते हो या फिर लॉस निकालते हो वो किस पे निकालना होता है? CP पे ही निकालना होता है। तो ये इसलिए मैंने वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे ही निकालते हैं। ओके, सेलिंग प्राइस पे कभी भी डिस्काउंट नहीं निकालते। ठीक है, याद रखो इस चीज को। तो चलो देखते हैं, एन आर्टिकल इज मार्क्ड विथ 250 रुपीज़, मतलब इसका MP क्या है। तो चलो सबसे पहले कोई भी अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो सबसे पहली बात आपको लिखनी है MP कितनी है? 250। सबसे पहले लिखनी है CP इन द प्रॉफिट एंड लॉस, CP लिखना है सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, वो होनी ही चाहिए आपके पास। ठीक है, नहीं है तो भी क्या करना है वो देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो राइट नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दैट कि आपके पास MP है, दैट इज मार्क्ड प्राइस है। तो वो कितनी है? 250। उसके ऊपर कितने % डिस्काउंट दिया है? डिस्काउंट लिखो, डिस्काउंट जो दिया है वो कितना है? 10%। आपको क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस। तो चलो देखते हैं, तो पहले डिस्काउंट निकालते हैं। अभी आप बोलोगे डिस्काउंट दिया हुआ है, लेकिन ये परसेंट में दिया है, हम लोग वैल्यू में निकालना है। देखो 10% ऑफ, ऑफ कितना? देखो हमने लास्ट टाइम के सेशन में भी देखा था कि परसेंटेज निकालते हैं किसी पे, तो किसी के वैल्यू पे, तो वो कौन चाहिए? मुझे MP चाहिए। तो आई हैव टू फाइंड आउट 10% ऑफ MP। हमेशा MP पे ही निकालना होता है, एज आई सेड डिस्काउंट आ गया तो MP पे ही परसेंटेज निकालना है। तो आ जाएगा मेरा डिस्काउंट, कितना आता है देखते हैं। 10% ऑफ मतलब क्या होता है? इनटू, है ना, इनटू MP कितना है? 250। देखो वही तो मैंने बोला था कि लास्ट, ये एक बार आपने कर दिया तो वही चीज़ बार बार करने वाले हम लोग। 0 गेट कैंसिल, 0 गेट कैंसिल, कितना आ गया? 25। तो 25 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंटेड मनी है ये। मतलब इज इट अ सेलिंग प्राइस? मतलब डू यू थिंक कि 250 रुपीज़ का 25 रुपीज़ में बेच दिया, ऐसा है क्या इसका मतलब? नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि 25 रुपीज़ कम कर दिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा जो पूछा है क्वेश्चन में? ये कम कर दो ना अमाउंट मार्केट प्राइस में से, मार्क प्राइस में से। तो 250 माइनस 25 विल बी 225। तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस इसका? 225। देखो समझ में आ गया?
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर आइडिया समझ में आ गया, वेरी सिंपल आइडिया है। इसका और एक मेथड भी है, अल्टरनेटिव मेथड, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। ये आंसर बस याद रखो कि 225 है, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। मैं डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली, कुछ सब्ट्रैक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आई कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। देखो 10% डिस्काउंट मिला है, तो बचा कितना, 90%, एग्जैक्टली। तो जो बचा है वो होगा मेरा सेलिंग प्राइस, बराबर है ना। देखो 10% डिस्काउंट मतलब 10% कम कर दिया, मतलब बचा कितना, 90%। तो 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस इज नथिंग बट माई सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। डिस्काउंट कम हो जाता है तो 90%, हमने लास्ट टाइम भी, लास्ट सेशन में भी ये देखा था, ये चीज़ देखी थी। देखो कि जितना परसेंटेज, जो बचा हुआ परसेंटेज जो होता है, दैट कैन बी योर आंसर। देखते हैं आपका आंसर 225 आता है क्या। तो 90/100 इंटू 250, 0 0 ऑफकोर्स गेट कैंसिल, ये 0 0 गेट कैंसिल। तो 9 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 19 20, अरे 9 5 ज़ा 45 होता है रे, सॉरी, 9 5 ज़ा 45, आई एम सॉरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 22, ये आ गया आपका आंसर डायरेक्टली, नो सब्ट्रैक्शन नथिंग। समझ में आया, इज दिस क्लियर। हाँ, अभी आपको डिस्काउंट फाइंड करना है, स्पेशली डिस्काउंट फाइंड करना है। तो मार्केट प्राइस डिस्काउंट आपको पता है ना, क्या हो गया आज मुझे, डिस्काउंट क्या होगा, एमपी माइनस एसपी। तो मार्केट प्राइस कितनी है, 250 माइनस 225, ये आ गया आपका डिस्काउंट 25। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप लोग इसको, क्वेश्चन को आपके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए आप पूछोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आफ्टर दिस। ओके, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे ये इसी पे बेस रहेंगे। तो मेरा जो टारगेट रहेगा आपको यही सिखाना रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसी के हिसाब से हमारे पास अलग क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। ओके, तो प्रॉफिट लॉस में इंपॉर्टेंट क्या है, सीपी। तो सीपी कितना है इसमें, सीपी दिया है क्या, देखो देना तो चाहिए। आर्टिकल इज परचेस फॉर रुपीज, हाँ जो अमाउंट से हमने कुछ लिया है उसको बोलते हैं सीपी। तो ये आ गया मेरा 200, इज सोल्ड विथ 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है, कितना है प्रॉफिट, 20%, लेकिन ये परसेंटेज में, डायरेक्टली वैल्यू में नहीं है, हमें वैल्यू में फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 20% ऑफ, देखो प्रॉफिट हमें निकालना है वैल्यू में, कितना होगा, 20% ऑफ सीपी, बराबर, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20/100 इंटू 200, बराबर है कि नहीं। तो 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 220 ज़ा 40। तो प्रॉफिट कितना लिया है उसने, 40। अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस बताओ जरा क्या होगा सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, मुझे अमाउंट ज़्यादा करके बेचना है ना, कोई भी चीज़ अगर मुझे प्रॉफिट कर लेना है तो मेरे कॉस्ट प्राइस से थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा बेचनी पड़ेगी। तो वो ज़्यादा कितनी बेचनी पड़ेगी, 40 रुपीज़ से। तो मेरा सीपी प्लस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 200 प्लस 40, दैट मीन्स 240। तो 240 रुपीज़ में मैंने वो चीज़ बेचनी चाहिए थी, तो मेरा सेलिंग प्राइस मुझे मिल गया। इस प्रॉफिट की जगह पे अगर लॉस होता, सिर्फ प्रॉफिट की जगह पे लॉस होता, तो हम लोग क्या करते पता है, यहाँ पे लिखते लॉस, 40 आता आंसर, ऑफकोर्स आंसर तो 40 आता। बस यहाँ पे क्या होता, सीपी माइनस लॉस करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें कम अमाउंट में बचनी है। ओके, वो भी हम लोग देख लेंगे बाद में। लेकिन मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा था कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का, जैसे इसमें अल्टरनेटिव मेथड मैंने बताया, इसको भी सॉल्व करने का और एक तरीका है। चलो देखते हैं वो क्या तरीका क्या है। डायरेक्टली मैं सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, देखते। प्रॉफिट 20% हुआ है, मतलब ज़्यादा, 20% ज़्यादा, किस में ज़्यादा, 100 में ज़्यादा, मतलब टोटल जो होगा वो 120% होगा। सेलिंग प्राइस जो होगा वो 120, देखो 100 तो परसेंट मतलब सीपी है, उसमें 20% ऐड कर दिया, मतलब कितना हो गया, 120%, राइट। तो एस पी इज माई एस पी, जैसे यहाँ पे 90% हुआ था, वैसे माई एस पी इज यहाँ पे 120% ऑफ सी पी। सी पी से 120% ज़्यादा है ना। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि परसेंटेज 100 से भी ज़्यादा हो सकता है, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज देयर। ओके, 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये रहा आपका 120% ऑफ सी पी। तो 120/100 इंटू सी पी, सी पी क्या है, 200। तो ये 0 0 गेट कैंसिल, एंड 12 2 24 एंड 0, 240 रुपीज़। ये डायरेक्टली मुझे आंसर आ गया। अभी प्रॉफिट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 240 माइनस 240 प्रॉफिट, तो प्रॉफिट विल बी 40।
तो ये जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। दैट्स इट, नॉट अ बिग डील। समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए होमवर्क है, मैं पहले ही बोलता हूँ, आज बहुत ज़्यादा होमवर्क है और टेक्स्ट बुक का नहीं है, मैंने खुद बनाया हुआ होमवर्क है। तो इसको आप लोग, उस होमवर्क को आप लोग आज कंप्लीट करोगे ना, तो ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट डिस्काउंट सब आपको ठीक से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड विथ 500, तो आपका एमपी, मैंने बोला था ना डिस्काउंट में एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी है 500। एंड सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, कितना है सेलिंग प्राइस? ₹400। 400 में उसको सेल किया, मतलब थोड़ा कम अमाउंट में सेल किया ना, ये राइट, क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट हो गया वो। अच्छा, डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है पता नहीं, परसेंटेज में हमें फाइंड करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है। तो पहले डिस्काउंट फाइंड करते हैं, कितना होगा डिस्काउंट इसका? तो ये होगा MP माइनस SP, वेरी क्लियर। ₹100 डिस्काउंट मिला है उसको। कितना मिला है? ₹100 डिस्काउंट। अभी ₹100 किस पे मिला है? देखो, ₹100 उसने डिस्काउंट लिया, किस पे लिया? एज वी नो, मार्क्ड प्राइस पे। मतलब क्या है, अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगा? आपको पता है ना परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? ऑप्टेन मार्क अपॉन टोटल मार्क इंटू 100, वही है ना कॉन्सेप्ट। तो डिस्काउंट कितना मिला? 100 आउट ऑफ कितना? 500। 500 था उसका मार्केट प्राइस, मैंने ऑलरेडी बोला था मार्केट प्राइस ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इंटू 100 ऑफ कोर्स, दिस विल गिव मी डिस्काउंट परसेंट। बराबर है कि नहीं? तो 0 गेट कैंसिल एंड 5 1 जा 5 20 जा, तो 20% विल बी माई डिस्काउंट। देखो, ठीक से समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत सिंपल है। ओके, मैं कोई भी फॉर्मूला अभी तक आपको बताया ही नहीं है। आई डोंट वॉन्ट यू टू यूज़ फॉर्मूला, है ना, वो फॉर्मूला रहता है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, वही कर रहे हैं हम लोग, वही तो कर रहे हैं, बस आई डोंट वांट यू टू यूज़ इट। ओके, मुझे ये नहीं चाहिए कि आपको आप फॉर्मूला यूज़ करके उसका दिमाग में रखो, याद करो, फॉर्मूला पे सामने रखो, उसके हिसाब से सॉल्व करो, बिल्कुल नहीं। आई वॉन्ट यू टू यूज़ योर ब्रेन फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, नॉट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक जनरल वे दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को आप सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया ना? इसका मेथड यही है, उसको कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आर्टिकल इज परचेस्ड फॉर ₹10,000, इसमें तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस CP 10,000, एंड सोल्ड मतलब SP दिया 8,000। तो वो जो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, मतलब उसने ज़्यादा में लिया है एंड कम में बेचा है तो लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हुआ इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये लॉजिक लगाओ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। ₹2,000 में उसने क्या किया, उसको ₹2,000 का लॉस हुआ है, लेकिन मुझे लॉस नहीं चाहिए, लॉस तो मुझे मिल गया, लेकिन लॉस सिर्फ नहीं चाहिए, लॉस परसेंटेज चाहिए। तो कैसे करेंगे लॉस परसेंट? वही है, इसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है? CP। देखो, इसमें जैसे MP इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? CP। तो तो लॉस परसेंटेज जो होगा मेरा इज इक्वल्स टू 2,000 जो लॉस है अपॉन टोटल, है ना, ऑप्टेन मार्क अपॉन टोटल। टोटल क्या है? CP। CP मेरा टोटल होता है, हमेशा याद रखो, इंटू 100 ऑफ कोर्स, जो हमने देखा था 0 गेट कैंसिल, 0 गेट कैंसिल, ये 2 0, ये 2 0 गए, कितना बचा? 20। तो 20% हो गया मेरा आंसर। हाँ, दोनों का वही आंसर आता था, पता है मुझे, लेकिन बात तो समझ में आ गई आपको कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ओके, एंड एवरीथिंग इज ऑन MP इन डिस्काउंट एंड CP इन आपका प्रॉफिट और लॉस, जो भी हो। क्लियर? बन रही ना बात, बन रही है? चलो और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, और ये भी चीज़ हमने लास्ट सेशन में की हुई है, बस आपको दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें लानी होंगी, दैट्स इट। देखते हैं, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹475, मतलब SP दिया हुआ है 475, ये MP नहीं है, तो MP तो दिया नहीं है, मैंने बोला था MP बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो तो दिया नहीं है, तो इसलिए अगर नहीं दिया है तो हम लोग उसको फाइंड करेंगे एंड उसको लिखेंगे X, क्योंकि MP मुझे चाहिए ही चाहिए। आइदर इट शुड बी गिवन और यू शुड टेक इट एज X। MP के बगैर यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, MP इसमें एंड इसमें CP के बगैर यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर नहीं है तो उसको कोई वेरिएबल ले लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो MP तो मुझे मिल गया। An article is sold at ₹475 where 5% discount was applicable, मतलब डिस्काउंट कितना दिया था?
डिस्काउंट वॉज 5%। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा ज़रा बताओ, ब्रैकेट में मैंने लिखा था, यू रिमेंबर, अगर 5% उसमें से कम कर दिया तो कितना परसेंट बचा, एग्जैक्टली 95%। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये 95% है ऑफ मार्क प्राइस, बराबर है, समझ में आ गया, मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 95% ऑफ, हाँ ऐसे लिखते हैं पहले, 95% ऑफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यही तो किया था हमने, बराबर है ना, जो भी परसेंटेज निकालना है वो मार्क प्राइस पे ही निकालना है व्हेन इट कम्स टू डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस पे लिख लिया 95% ऑफ मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस। तो 95% मतलब 95/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस विच इज 475। पता है मुझे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है कैलकुलेशन एंड ऑल, बट देख लेंगे, कर लेंगे, उसमें क्या है। तो x विल बी इक्वल टू 475 इंटू 100/95, बराबर। ये और ये 5 से डिविजिबल है, 100 को कुछ मत करो क्योंकि थोड़े से नंबर रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, तो 100 को कुछ नहीं करते, चलो डिवाइड करना शुरू करते, पता नहीं परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 एंड 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 19 1 जा 19 5 जा, मुझे 19 का टेबल आता है इसलिए समझ में आया, लेकिन आपको नहीं आता तो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग कैलकुलेट करके कर सकते हो, 19 इंटू वॉट इज गोइंग टू बी 95, ओके, गेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, 5 इंटू 100 है ना, कितना आ गया 500। तो मेरा एक्स है 500, मतलब एमपी का मतलब क्या हो गया, मार्केट प्राइस कितना है, ₹500। देखो समझ में आ गया, आ रहा है ना समझ में, ये 95% वाला कॉन्सेप्ट देखो कितना हेल्पफुल है, इतना सिंपली हमने डायरेक्टली सॉल्व किया, कुछ भी टेंशन नहीं लिया, डायरेक्टली एक ही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये 95% बहुत यूजफुल हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देखो एन आर्टिकल, देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, सीपी इंपॉर्टेंट है, सीपी दिया है क्या, पता नहीं, देखते हैं। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ₹525, तो ये तो सेलिंग प्राइस है 525, सोल्ड बेचा हुआ है तो 525 विथ 5% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है कितना है 5%, एंड आपको उसका सीपी जो दिया है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो दिया है वो पता नहीं है, वो तो फाइंड करना है, तो सीपी हमें जो इंपॉर्टेंट है वो तो लेनी ही पड़ेगी। तो लेट्स सीपी भी एक्स, हमने एक्स कंसिडर किया, देखो सीपी को हमने क्या कंसिडर किया, एक्स कंसिडर किया, लेकिन हमें एसपी दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया होता तो कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन दिया क्या है एसपी, मतलब क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे, प्रॉफिट अगर 5% है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होता है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू नो दिस, इफ प्रॉफिट इज गिवन 5% तो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ज़्यादा होता है ना, मतलब प्रॉफिट अब जब हम लोग लाते हैं या फिर कमाते हैं, दैट मीन सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो कितना मोर होना है, 5% मोर होना है, तो कितने में 5% मोर होना है, 100 में, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट अगर 5% है तो सेलिंग प्राइस होगा 105%। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 105% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी। ये बराबर है क्या, मतलब वही चीज़ की हमने जो यहाँ पे की हुई है, देख रहे हो। तो 105/100 इंटू सी पी है एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है 525, तो एक्स विल बी इक्वल टू 525 इंटू 100/105, बराबर है ना, ठीक है, समझ में आ गया। 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5, 5 0 5 5 25, ओके 21 5 अगेन वही चीज़ है, मुझे 21 का टेबल आता है, आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है, मुझे नहीं आता है, इसे कंसिडर करते हैं, तो 21 इंटू 5 करके देख लो ना, 5 1 5, 5 2 10, वो तो करेक्ट है, तो 5 तो आएगा आंसर अगेन 500, देख लो। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है इन दिस केस इट विल बी 500। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस कुछ अलग नहीं है, सेम है, ऑल दीज आर सेम थिंग्स, सेम थिंग, प्रोबेबली जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड और वी शुड हैव आवर ब्रेन टू प्रॉपरली नो दैट कि दीज टू थिंग्स आर द सेम थिंग, ठीक है। तो अभी ये 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हमने देखे, 3 कैटेगरी, पहला वाला जहाँ पे हमने प्रॉफिट या फिर डिस्काउंट फाइंड किया या फिर सेलिंग प्राइस फाइंड किया,
सेकंड इसमें परसेंटेज फाइंड किए डिस्काउंट एंड प्रॉफिट और लॉस के, एंड थर्ड में हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस दे के कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस फाइंड किया उल्टा। अभी मैंने क्या किया हुआ है, कंसिडरिंग दिस 3 क्वेश्चंस आई हैव क्रिएटेड वन सिंपल एक्सरसाइज फॉर यू, DIY, डू इट योरसेल्फ। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, सिंपली आपके पास एक टेबल है, मैं आपको एक टेबल समझाता हूँ। पहला वाला टेबल देखो, यहाँ पे क्या क्या दिया है, MP दिया है येलो कलर से जो शेड किया हुआ है, MP दिया है, SP दिया है, डिस्काउंट दिया है। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, MP दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, आपको SP फाइंड करना है। सेम MP दिया है, डिस्काउंट दिया है, आपको SP फाइंड करना है। तो अभी ये डिस्काउंट है 10% है, तो SP परसेंट कितना होगा, 90% होगा, याद रखो। 25% हो, SP परसेंट कितना होगा, 75% होगा, राइट। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो फॉलो करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या किया हुआ है, MP दिया है, SP दिया, आपको डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट करो एंड MP पे डिस्काउंट फाइंड करो, सेम। और आपको कोई भी डाउट हो तो पिछले वाले क्वेश्चंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढो एंड सर्च करके गेट इट डन। समझ में आ गया। नेक्स्ट में क्या दिया देखो, SP दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, आपको MP फाइंड करना है, जो अभी भी हमने सॉल्व किया। वही चीज़, एक ही चीज़ बार बार हम जब करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, इन दिस कैटेगरी क्या दिया है, आइदर प्रॉफिट, रेड वाला जो है, रेड वाला सेक्शन जो है, उसमें हमने क्या किया, आइदर प्रॉफिट दिया या फिर लॉस दिया है। जहाँ पे प्रॉफिट दिया वहाँ पे लॉस को हमने डैश कर दिया, जहाँ पे लॉस दिया वहाँ पे प्रॉफिट को डैश कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, CP दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, SP फाइंड करना है। तो प्रॉफिट है मतलब 110% विल बी द SP, बराबर। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10 है, तो प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा होता है, 110% विल बी SP, फाइंड करो। CP का 110% विल बी योर SP, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लॉस दिया है 25%, मतलब कम होगी वैल्यू, मतलब 75% ऑफ CP विल बी योर SP हियर। तो इन दिस मैनर यू कैन प्रोसेस योर ब्रेन प्रॉपरली एंड गेट द थिंग्स डन, ठीक है। तो लेट मी सी, ये पूरा टेबल, सिर्फ टेबल वैल्यूज पुट करके, ये जो टेबल है ये टेबल ड्रॉ करके आपको मुझे आज सेंड करना है। ईच एंड एवरी वन शुड सेंड दिस टू मी। कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन। एंड बिलीव मी, ये 11 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इट इज डन, टॉपिक इज डन। ओके, सो अंडरस्टैंड, डू इट प्रॉपरली। सिर्फ और सिर्फ ये 11 क्वेश्चन एंड आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज टॉपिक इज डन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो। I'll be surely waiting for your answers today itself. Bye bye.